क्वेश्चन देखो राजा 11, द पर्टिकुलर्स ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस कंप्लीटेड ऑन 31st May 2021, थोड़ी बुक की बोलूगी 22, these are given below. Rent is 800 per month, municipal tax is paid 1800 rupees, ਇਹ ਹੁਣ per month per annum ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ total चाहिए, ground rent ਚਾਹੀਦਾ, insurance ਚਾਹੀਦੀ, interest on amount ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, interest on amount borrowed for construction of this house, genuine or not genuine? Interest on amount borrowed for construction of this house, that's okay. Interest on loan, collection charges ਚਾਹੀਦੇ, assessee mortgage the house, ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ ਤੁਸੀਂ mortgage ਕਰਤਾ for 36,000, 36,000 ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ mortgage ਕਰਕੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ to meet the expenses of his daughter's marriage, ਕਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ, and paid an interest of 3,000 on the mortgage loan during the year, 3,000 ਦਾ ਉਸ ਲੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ, ਬੋਲੋ, ਇਸ 3,000 ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ नहीं मिल रही because this interest was on the loan which was not taken for that house, it was taken for the daughter's marriage, मतलब this is not deductible। और ਇਹਦਾ ਆने की यूज ना करो, ਇਹਦਾ ਆ ਵੀ ਦੱਸਣਾ कि नोट लिख के दोगे कि क्यों नहीं यूज कर, ठीक है। Assessee also claimed that he had not realized rents from his tenant to the extent of 2,000, this is unrealized rent, step third which come on, and he proved his claim to the entire satisfaction of the assessing officer that the conditions for its admissibility were satisfied, compute income under the head house property, बोलो step 1 पहला जीएवी चाहिए है ना क्योंकि रेंट तो आ रहा, ठीक है। सो की होगा स्टेप 1 जीएवी ले, स्टेप 1 हायर ऑफ एमआरबी और एफआरबी है, क्वेश्चन दोनों ही नहीं है। स्टेप 2 स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट वो भी नहीं है, छाड़ दो। स्टेप 3 सेकेंड और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना आया 800 इंटू 12, यस और नो, माइनस अनरियलाइज्ड सीधा 2,000 रुपीज किया, कोई पर मंथ या कुछ भी मल्टीप्लाई में मंथ्स नहीं किया, 2,000 रुपीज क्या था, देखो इधर कितना आया 12 8 96, 9600 minus 2,000 7600, और स्टेप 2 विच एवर इज हायर, स्टेप 2 दसेगा ही नहीं, ताकि आंसर आ गया स्टेप 3 का 7600। उस तो बाद स्टेप 4 थर्ड माइनस वैकेंसी अलाउंस है कितने, वैकेंसी नहीं तो जीएवी कितना आ गया 7600। अगे सुनो एक सेकंड, अगे राजा जीएवी कितना पुट करोगे हम 7600 माइनस की कर दे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर कितना 1800, नैव कितना आ गया 56 के 46, अच्छा सॉरी 58, 5800 आ गया नैव। हूँ माइनस की करना है चो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी आओगी 30% ऑफ नैव दैट इज 1740। देन सेकंड वन इंटरेस्ट ऑन लोन केड़ा मिलूगा केड़ा मिलूगा राजा 1000 वाला 3000 वाला या दोनों 1000 वाला। आफ्टर दैट योर इनकम बिकेम 3060, यस और नो, समझे चीज। और नीचे नोट दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय मॉर्गेजिंग द हाउस फॉर द पर्पस ऑफ daughter's marriage is not allowed या not deductible, am I clear, yes or no, yes or no, any doubt you can ask, ठीक है राजा। नोट की लिखे नीचे इंटरेस्ट ऑन लोन taken by mortgaging the house is not allowed or deductible because the purpose of this loan was his daughter's marriage and not for the house, yes or no।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो, चेक करो, सेम क्वेश्चन है, हाउस ए हाउस बी। ओके राजा, क्वेश्चन रीड करो। मिस्टर श्रीकांत owns two houses, the particulars of which are given below for the previous year 24, 25, and नीचे assessment year 25, 26. House A, House B. Annual rent ਕਿਹੜਾ ਹੈ? Actual. Annual rent means actual. Then ਤੁਹਾਨੂੰ standard rent given है, municipal valuation given है, fair rent given है, municipal taxes given है, दोनों हाउस ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਾਊਸਸ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਹਾਊਸਸ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਲੈਟਸ मूव ऑन। फेयर रेंट गिवन, म्यूनिसिपल टैक्सेस गिवन, फायर इंश्योरेंस नॉट रिक्वायर्ड, ग्राउंड रेंट नॉट रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड ड्यूरिंग 1998 and 1999 for construction of house and 50% paid, 36,000 per annum and 48,000 per annum. This is interest on loan. Unrealized rent pertaining to this year. House A ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, House B ਦਾ ਕਿੰਨਾ 6,000, we were 6,000 per month per annum, कुछ नहीं किया, टोटल सी है। ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, हाउस ए सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस बी लेट आउट। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर द ओल्ड टैक्स रिजाइम। ओल्ड मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की लोगे, IOL लोगे ना। assuming that the assessing officer is satisfied with the non recovery of rent, ਜਿਹੜਾ unrealized ਆ मतलब ਉਹਨੂੰ properly count ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, consider ਕਰਨਾ। yes or no? yes or no? ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਹਾਊਸ A ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ। ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਸਿੱਧਾ ਨੈਬ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦੋ। yes or no? ਕਿੰਨੀ ਪਾਓਗੇ? ਨੀਲ। सोचना थोड़ी हो कुछ। नैब अंडर सेक्शन 23 दो, नील। नेक्स्ट स्टेप डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 ए तो मिलनी नहीं क्योंकि नील होंगी, बीच की मिलना IOL कितना क्या 36,000 क्या 36,000 क्या उन्होंने, सो एक्चुअल और 30,000 विच एवर इज लेस, वो समथिंग एल्स है। उन्होंने आ क्या कि मैं इस जिन्ना भी लोन लिया सी ओदा हाफ वापस पे कर चुका, डजंट मैटर सांता IOL ना मतलब लोन ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ डजंट मैटर। या तो लोन ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, then we were that's important to consider, but ਸਾਨੂੰ IOL ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਲੋਨ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ doesn't matter। yes or no? so actual और 30,000 whichever is less। ठीक है, so कितना आ गया 30,000, आंसर क्या आ गया -30,000। अच्छा इतने 2 लाख वाली कंडीशन तो नहीं लगनी, सेल्फ ऑक्यूपाइड से भी सोचना की कंडीशन सी होती है, 3 कंडीशन सी अगर 2 लाख ते जाना। बोलो पहले, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਿਆ 1998 99 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ, मतलब पहली कंडीशन ही फेल, मींस चुप करके 30,000 ना करो, क्योंकि अगर इतने 2 लाख वाली कंडीशन लग जाती, इतने 2 लाख आया ना, 2 लाख और 36,000 विच एवर इज लेस की आना सी 36,000, आंसर चेंज हो जाना सी। यस और नो? और ये चीज मैं अज क्यों पूछी, किन्ने क्वेश्चंस तो आप सोची भी नहीं, क्यों पूछी राजा, इतने ईयर ऑफ टेकिंग लोन गिवन सी ना, सो माइंड्स कंडीशन आनी चाहिए है कि चेक करो कि वो कंडीशन पूरी हो रही है, डिस्क्वालीफाई हो रही है। यस और नो? तीनों, ऑल थ्री। लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। दूसरी कंडीशन, लोन शुड बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस गिवन, ये कंडीशन होगी पूरी। कंस्ट्रक्शन या परचेज दो से, ठीक है, दोनों जो एक चीज है दैट्स ओके। तीसरी कंडीशन, हाउस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वाज टेकन, ਉਹਦੇ बारे कुछ नहीं किया। एक गिवन नहीं है, एक डिस्क्वालीफाई होगी, एक क्वालीफाई होना कोई फर्क नहीं पैंदा। यस और नो? हाउस बी ते चलिए, हाउस ए देखो, देखो नु लग रहा सी इन्ना डाटा की होया, हाउस ए दा आंसर कुछ भी नहीं। हाउस बी दा बोलो की करना सब तो पहला, जीएवी स्टेप 1 बोलो क्विक, इथों आंसर दो।
स्टेप वन का आंसर क्या होगा? एमआरवी और एफआरवी विच एवर इज हायर 1,80,000. स्टेप टू ईआरवी इज इक्वल टू 1,80,000 और 150 विच एवर इज लोअर. आंसर क्या आ गया? 1,50,000. देन स्टेप टू और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज. अनरियलाइज है कितने? 6,000. 172 माइनस 6 क्या आया? 166. 166 और 150 विच एवर इज हायर, तो 166. स्टेप फोर जीएवी इज इक्वल टू 166 माइनस वैकेंसी कोई नहीं है, सो जीएवी आ गया 1,66,000. यस और नो? देखो कितने ब्रिलियंट बच्चे हो तुसी, है ना? आगे भी बोलो 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 बोलो, फिर लिखियो. जीएवी आ गया, माइनस की कर दे. म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर कितने हैं? हाउस बी दे देखियो ध्यान नाल. 16,000. नैव आ जाऊगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%. देन इंटरेस्ट ऑन लोन 48,000. इतने कोई कंडीशन, कोई लिमिट, कुछ भी नहीं. 48,000 एज इट इज यूज होगा. 24A भी हो गया, 24B भी हो गया. बैलेंस आ गई इनकम. ठीक है, यस और नो? हाउस बी द इनकम 57,000, हाउस ए द लॉस 30,000. नेट इनकम की आ गई 27,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. यस और नो? यस और नो? ਹੁਣ आंसर चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, बोलो. करो सॉल्व. नेक्स्ट देखो राजा, क्वेश्चन नंबर 19. Mr. A owns the house properties about which the detailed information is given below. तो अगेन कितने हाउस का डाटा गिवन है? बोलो. 2 हाउसेस. यस और नो? देखो राजा, ठीक है, चेंजेस है इस क्वेश्चन हल के, बट चेंजेस आर नॉट रिलेटेड टू योर हाउस प्रॉपर्टी हेड. सैलरी जा वो आप बाद 2 मिनट देख के जाए. सो हाउस वन एंड हाउस टू दोनों दी एमआरवी गिवन है, एफआरवी गिवन, स्टैंडर्ड रेंट गिवन, एक्चुअल रेंट गिवन. Interest on loan taken for construction of house. Then vacancy period 2 months in first house and 3 months in second house. Municipal taxes 10% of MRV. Second 2,400. Additional information: can the loan was taken for construction of house number 1 by mortgaging house number 2. कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है. मॉर्गेज कीता बट यूज कितने होने पैसे? दूजे हाउस होना था हाउस प्रॉपर्टी या यूज. Assessee receives salary of 30,000 per month. Both the units are let out. Both the units are let out. बोलो पहला हाउस वन की गल करिए. हाउस वन की गल करो जरा. मैनू दसो स्टेप वन जी ए विच ਲਈ पहला क्या होगा? 2 मिनट आंसर सोच लो. पहला स्टेप वन क्या होगा? एमआरबी और एफआरबी विच एवर इज हायर मीन्स 24,000. स्टेप टू क्या होगा? 24,000 और 20,000 विच एवर इज लोअर, तो 20,000. स्टेप थ्री 20,000 और कोई अनरियलाइज है नहीं, 20 और 30 विच एवर इज हायर, तो 30,000. स्टेप फोर 30,000 माइनस वैकेंसी अलाउंस. 2 मंथ्स की वैकेंसी है. हूँ इतने पॉइंट आया कि 2 मंथ्स वैकेंसी 2 मंथ्स इंटू की कर दे रेंट पर मंथ. सानू रेंट एनुअल गिवन है सीधा 30,000. सो पहला 30,000 डिवाइडेड बाय 12 करके की करोगे? पर मंथ रेंट फाइंड करोगे, दैट इज 2,500. यस और नो? सो 2 मंथ्स का कितना होया? 5,000. सो 30,000 माइनस 5,000 25. देन 25 नु कंपेयर कितना करना? नहीं, 5,000 वैकेंसी सी. ठीक है, सो फोर्थ स्टेप का आंसर आया 25,000. एनी डाउट? जीएवी क्लियर होगी फर्स्ट हाउस की. हूँ जीएवी 25,000 अगे की करना? म्यूनिसिपल टैक्सेस उन्होंने क्या 10% ऑफ एमआरवी मतलब 2,400. कैलकुलेटर चक्को नाला. 25,000 माइनस 2,400 नैब कितनी आ गई? 226,000. उस तो बाद माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए पॉइंट क्या होगा? 30% ऑफ नैब माइनस कर दो.
you got 15820. Then interest on loan, interest on loan कितना आया बोलो? 28,000. सो माइनस करके तो को आया 12180 द लॉस. यस और नो? हाउस वन बिल्कुल इजी सॉल्व हो गया. और लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन थे, कोई लिमिट चेक करनी सी? नहीं, बिकॉज दिस वाज लेट आउट है ना. हाउस टू दी कैलकुलेशन थे. आओ सारे जल्दी. दे शुड बी कैलकुलेटर्स इन योर हैंड एवरीवन. स्टेप वन, MRV FRV whichever is higher. 38, then 38,000 or 40,000 whichever is lower. कितना होगा अगेन? 38,000. then 38,000 और 36,000 whichever is higher. पे कितना आ गया? 38. then 38 minus any vacancy. 3 months. yes, 3 months की vacancy कितना फाइंड करोगे? 36,000 से एनुअल रेंट डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 9,000. सो 38 माइनस 9 करके 29,000 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਇਆ? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. वैकेंसी वाज रजा 3 months. सो थर्ड स्टेप ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? 38,000. ਉਹ ਚੋਂ ਵੈਕੈਂਸੀ 3 months ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਗੀ? एनुअल रेंट कितना गिवन है? डिवाइड बाय 12 पर मंथ कितना हो गया? 3,000. सो 3 months का कितना हो गया? 9,000. सो 9,000 माइनस करके जीएवी कितना आ गया? 29,000. ठीक है. ਹੁਣ जीएवी 29,000 अगे माइनस की कर दे? म्यूनिसिपल टैक्स कितना बोलो? 2400. नैव कितना आ गया? नैव आ गया 26,600. देन माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000. सॉल्व करके आ गया -3380. दो हाउसेस वेरी इजीली सॉल्व हो गए. यस और नो? सो देयरफॉर you got loss from house property 15560. इतना ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਆਨਸਰ 15560 ਦਾ ਲਾਸ. ਯੈਸ অর नो? ਤੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚਿਆ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਸੈਲਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 30,000 ਪਰ ਮੰਥ. ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ. ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖਿਓ ਰਾਜਾ. ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ ਇਨਕਮ ਅੰਡਰ ਦ ਹੈਡ सैलरी. सैलरी कितनी मिल रही है ਉਹਨੂੰ? 30,000 पर मंथ. साल ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟੂ 12? 3,60,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 ਨਾਲ ਗਿਆ 1A. 1A क्यों आया ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਆਉਗੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਚ. ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ 1, ਇੱਕ ਆ ਸਕਦੀ 2, ਇੱਕ ਆਂਦੀ 3. ਨਾਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ. ठीक है, नॉर्मली इस तरह होंदियां सी. बट स्टैंडर्ड डिडक्शन रिमूव करती गई सी. 1 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टैंडर्ड डिडक्शन ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ. जब ਅਸੀਂ इनकम टैक्स पढ़ी उस टाइम स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी हेड से नहीं सी. 1 वाज रिमूव्ड. ਹੁਣ 2 और 3 इयर्स बैक स्टैंडर्ड डिडक्शन रीलॉन्च हुई तो 1 ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ? 1A ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ स्टैंडर्ड डिडक्शन. किन्नी ले आए? 1A. ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी किन्नी आ? सैलरी हेड्स. ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. दैट विल लर्न इन द सैलरी चैप्टर. ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ विल लर्न इन द सैलरी चैप्टर. ਗੱਲ ਆਈ 1A ਚ डिडक्शन मिलने किन्ने? if you are opting old tax regime then 50,000 standard deduction is there, and if new then 75,000. क्वेश्चन चेक करो ਤੁਹਾਡੇ न्यू बुक्स चेक करो ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? न्यू टैक्स रिजाइम किया. उन्होंने क्वेश्चन किया न्यू टैक्स अकॉर्डिंग. तो कितनी डिडक्शन मिलोगी इतने? 75,000. सो इनकम फ्रॉम हेड सैलरी कितनी आ गई? 2,85,000. अगर ये ओल्ड रिजाइम होंदा इतने डिडक्शन कितनी आनी सी? 50,000. फिर आंसर की आना सी? 3,10,000. देखो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग कितना गिवन है? यस और नो? इतने हुन एक चीज समझो. हाउस प्रॉपर्टी हेड सब ने सॉल्व कर लेना. ਉਹਦਾ आंसर 15560 तक आ गया.
बट आई विल सुजेस्ट ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ, ओल्ड वाला भी न्यू वाला, ओल्ड वाला भी न्यू वाला भी। सुनो कितना ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ इफ न्यू टैक्स रिजाइम है यू विल शो दिस, सैलरी हेड ਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ ਇਫ ਅਸੈਸੀ ਆਪਟਡ ਫॉर ओल्ड टैक्स रिजाइम। फिर सैलरी ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ, एक चीज क्लियर होगी बोलो एवरीवन, यस और नो, एक चीज क्लियर होगी। बट इस तो अगे भी डिफरेंस है हाल, एक पॉइंट का होर डिफरेंस भी है। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਕੁਝ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਇੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ओल्ड, अगर करोगे ओल्ड टैक्स रिजाइन तो जीटीआई कितना आऊगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी सी -15,560 और सैलरी चो की मिली सी इनकम आई सी, तो जीटीआई कितनी आ गई 2,94,440। दिस इज एज पर ओल्ड, यस और नो, ता मैं ब्लू कलर ना मैच करता, यस और नो। ओल्ड के अकॉर्डिंग तो जीटीआई का आंसर आऊगा दिस वन। एक चीज क्लियर होगी, यस और नो। क्लियर है। एंड इफ ਤੁਹਾਡਾ न्यू ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ जीटीआई फाइंड करोगे, न्यू ਚ जीटीआई ਚ ਕੀ ਆਣਾ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना 15560 नेगेटिव, बट it cannot be set off against any other head, against income from any other head। मतलब इतने ਇਹਦਾ कोई वैल्यू नहीं आऊगी, लॉस है अगले साल देखेंगे अगर एडजस्ट हो सकिया, बट ये किसी होर हेड ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਸੈਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मीनस सेकंड ਤੁਹਾਡੀ हेड ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਸੈਲਰੀ, सैलरी ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ न्यू रिजाइम 2,85,000, सो ਤੁਹਾਡੀ जीटीआई कितनी आऊगी, देखो एक हेड च ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਹੈਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ओल्ड टैक्स 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰ ਹੈਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਰੂਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸੈਲਫ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਹੈਡ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਸੈਟ ਆਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈਡ ਨਾਲ ਸੈਟ ਆਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਹੈਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਪਾਊਗਾ। न्यू टैक्स रिजाइम च फायदे तो देते, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी की ਵਧਾਤੀ, उदा के बेनिफिट्स ਦਿੱਤੇ, बट नाल की करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कई कई जगह तो ਤੁਹਾਡੇ बेनिफिट्स ਲਏ भी गए हैं। सो ਇੱਥੇ ਕੀ किया कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी होर हेड के इनकम नाल सैट ऑफ नहीं हो सकता, उस हेड च इनकम होई उत्ते टैक्स बनता तो अज दो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बाकी ना सैट ऑफ नहीं होना, मीनस यदि इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर मतलब बिटवीन टू हेड्स, यस और नो। सो इंटर हेड एडजस्टमेंट की करती गई न्यू रिजाइम च, कैंसल करती गई। सो इतने तो जीटीआई आई 2,85,000, यू कैन चेक इन योर न्यू बुक कि जीटीआई इज गिवन 2,85,000, वो इस अकॉर्डिंग आ। और ओल्ड बुक्स तो मैं दिखाता कि आंसर की गिवन आ 294,440 एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम, क्योंकि उत्थे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी घट है। तो तुसी दोनों आंसर लिखोगे तो कंसेप्ट क्लियर होया या एक ना हो जाऊगा, दोनों ना। सो ये आंसर दोनों लिखने, दिस इज एक्स्ट्रा, ठीक है। बहुत जगह कुछ एक्स्ट्रा करना पैंदा जिंदगी, आ ना सोचियो बुक ने नहीं पूछा ऐसी क्यों कर, ठीक है। करो शाबाश।